हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की तरी वाली सब्जी। उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो कद्दू, जिसको हमने छिलके समेत ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। एक बड़ा प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, 5 से 6 कलियां लहसुन जिसे हम साबुत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 टमाटर बारीक कटे हुए। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी जितना चना, जो कि हमने 2-3 घंटे तक भिगो के रख दिया था। यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार, हमारे पास इधर है धनिया का पाउडर जो कि 2 चम्मच है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला। इधर हमारे पास है 1 बड़ा चम्मच जितना बारीक कटा हुआ धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 से 3 चम्मच मूंगफली, 1 चम्मच गुड़ घिसा हुआ, आधा चम्मच मेथी दाना और ये 4 चम्मच नारियल है। इसके अलावा हमें तेल चाहिए होगा तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वी आर मेकिंग pumpkin curry today, for which we would require half kg of pumpkin. We have cut it in big pieces along with the cover. We will not remove the peel. Then we have 1 large onion cut finely. We have 5 to 6 cloves of garlic which we have peeled. We have not cut them. 2 to 3 tomatoes cut finely. I have here half cup of Bengal gram which I had soaked in water for 2 to 3 hours. I have salt to taste, 2 teaspoons of coriander powder, 1 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon cumin powder, 2 teaspoons Kashmiri red chili, 1 teaspoon of garam masala. Then here I have 3 to 4 green chilies, 1 large or 1 tablespoon of chopped coriander fresh. I have here 4 teaspoons of grated coconut. Here I have 2 to 3 teaspoons of peanuts that are shelled, 1 teaspoon of jaggery, half a teaspoon of fenugreek seeds. I would also require oil around 3 to 4 tablespoons. So let's start making the curry. तो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करने से पहले एक चीज जो मैं बताना भूल गई थी, हमें यहाँ पर 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच जितना हींग पाउडर भी चाहिए होगा। 2 things that I had forgotten, friends, was 1 teaspoon of cumin seeds and 1/4 teaspoon of asafoetida. So let's start making this. I have put 1 tablespoon of oil in the kadai or wok, and now I will put cumin seeds and fenugreek seeds. मैंने तेल डाल दिया है 1 बड़े चम्मच। अब मैं इसमें जीरा और मेथी दाना डाल के हिलाऊंगी। हमें किसी भी चीज को बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, तो इसको बस आधा मिनट के करीब चलाएंगे हम, हल्का सा खुशबू आने तक। We will cook it till the aroma comes out of the spices. थोड़ी खुशबू आने लगी है मसालों की। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। Now I will put in the onions. Along with the onions, I'll also put the peanuts. इसके साथ साथ ही हम मूंगफली भी डाल देंगे और चलाएंगे अच्छे से। इसको हम थोड़ा सा हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। We will make the onion translucent and then we will put other things. Now I will put in the garlic.
लहसुन डाल दिया मैंने। अब लहसुन डाल के चलाएंगे, आधा मिनट तक इसको पकाएंगे। सेक को मीडियम रखेंगे। और अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डाल के दोबारा मिक्स करके फिर हम इसमें 1 चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद धनिया, हरा धनिया, फिर इसमें नारियल डाल देंगे। So the sequence that we have followed, we had put in first we had put in fenugreek seeds and cumin seeds. Then we added onions, made them translucent. Then we put in the garlic as well as green chili, green coriander and peanuts. We mixed them up nicely, and after that we put asafoetida, and we have also put in the coconut, grated coconut. So now we are mixing it all up nicely and we will cook it for half a minute. ये हल्का सा भून गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालकर इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे जब तक टमाटर थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता। We will put in tomatoes now and we will keep on stirring it and cooking it on low flame till the tomatoes are a little soft. As you can see, the tomatoes have started getting a little pulpy and soft, but they have to be more soft. So we will keep on stirring and cooking it on medium heat for 4 to 5 minutes. Then we will turn the flame off and we will let it cool down and then make a paste out of this. ये अभी टमाटर थोड़े थोड़े पकने लगे हैं लेकिन अभी भी थोड़े हार्ड हैं, तो हम इसको 3-4 मिनट और पकाएंगे। 3-4 मिनट पकाने के बाद जब टमाटर पूरी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करके और इसका पेस्ट बनाएंगे। तो जब ये टमाटर हो जाएंगे और पेस्ट बनेगा तो हम फिर वापस आते हैं। ये देखिए अब ये पेस्ट तैयार हो गया है और उसी सेम पैन में मैंने 3 टेबलस्पून जितना तेल ले लिया है और अब मैं ये इस पैन में धीरे धीरे सारा मसाला डाल दूंगी और इस मसाले को हम तब तक चलाएंगे जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देता। वी हैव मेड अ पेस्ट आउट ऑफ द अनियन एंड tomato peanuts mix. I have put in the same pan 3 tablespoons of oil and I have put in this paste. Now I will keep on stirring it and cooking it till the time the oil separates. जैसा कि आप देख सकते हैं अब तेल छूटने लगा है मसाले में से और ये अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसमें एक एक करके सारे मसाले डाल दूंगी। As you can see that the oil is separating. So now we will put all the spices one by one and mix it up nicely. One addition that I like to give to this kind of vegetable is around 1 teaspoon of dried mango powder and 1 teaspoon of fenugreek leaves. This is totally optional, so you can skip it completely. मैं इसमें 1 चम्मच जितना मेथी 1 चम्मच जितना सूखा हुआ मेथी और कसूरी मेथी और 1 चम्मच जितना अमचूर डालना पसंद करती हूँ। तो लेकिन वो जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो आप उसको रहने भी दे सकते हैं। तो अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी और अच्छे से चलाऊंगी। फिर इसमें गुड़ डाल दूंगी। गुड़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
उसके बाद भीगा हुआ चना डाल देंगे। आई हैव पुट इन fenugreek leaves dried and I have also put the Bengal gram and now we are stirring it nicely for half a minute. We will cook it. आधा मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें कद्दू डाल देंगे। once this is cooked, we will put in the pumpkin. So this needs to be cooked in only for 30 seconds or so. So we will strain the pumpkin now. It was in water as you saw, and now we will put in the pumpkin also. जैसा कि आपने देखा था, हमने पानी में डाल रखा था कद्दू को, उसको हमने छान दिया है और अब हम इसमें कद्दू भी डाल देंगे। कद्दू डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कम सेक पर ही है अभी। दिस इज ऑन लो फ्लेम दैट वी आर डूइंग इट, अदरवाइज ऑल द मसालाज विल बर्न, ऑल द स्पाइसेस विल बर्न। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 कप जितना पानी डाल देंगे और ढककर पकाएंगे कम सेक पर। Now that this is completely mixed, I will put in 2 cups of water, mix it well and then cover and cook on low flame for 10 to 15 minutes. 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में और फिर 10 से 15 मिनट में हम आकर देखेंगे कि पेठा गल गया या नहीं। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसको। इसकी ग्रेवी बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन बहुत कम भी नहीं होती, थोड़ी थिक सी गाढ़ी सी ग्रेवी हम बनाते हैं इसकी। A little thickish gravy is required for this. So now that I have mixed everything up, all the spices, all the masalas are mixed. Now I will cover this up and cook it for say around 10 to 15 minutes on low flame covered. And we will come back after 10 to 15 minutes to check if this is done or not. 15-20 मिनट हो गए हैं और अब मैं ये कवर हटाकर थोड़ा चाकू से इसका छिलका दबाकर देखूंगी कि ये हो गया कि नहीं। पीसेस टूटने नहीं चाहिए, इतना ज्यादा हमें नहीं गलाना है, बस इसका छिलका जो है वो पक जाना चाहिए। इट्स बीन 15 to 20 minutes now and I am checking the peel, the cover of the pumpkin. If this cover is done, then this means that our vegetable is done. The gravy is fine and you can see that this is going in. Let me check the peel also. Okay, I can cut on the peel also. तो इसका छिलका भी कट रहा है अच्छे से। अब मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। गैस बंद कर दूंगी और इससे हम पराठी के साथ सर्व कर देंगे एक बोल में डाल के। हमारी सब्जी तैयार है, हम इसे सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा ग्रेवी भी साथ में दे देंगे। ये हमने पराठी बनाकर रखी हुई है और इसे हम पराठी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। तो अब आप ये लौकी बनाकर देखिएगा, ये पेठा बनाकर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हम नई नई रेसिपीज आपके लिए और लाते रहेंगे डेली, और आप भी हमें अपने सुझाव देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज ट्राई दिस एट होम एंड टेल अस हाउ यू लाइक इट। एनी इम्प्रूवमेंट्स दैट यू फाइंड, डू टेल अस एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। Do keep on watching, subscribing and liking our channel. Thank you so much. Have a nice day.